Hello students, in this class we'll start with the kinematic degree of indeterminacy. What is kinematic degree of indeterminacy? This kinematic degree is basically known as the degree of freedom. Degree of freedom of movement, you can say that. Freedom of movement. अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब क्या होता है. Whenever you will apply a load over the structure, whenever you will apply the load over the structure, then the joints which are present in that structure, they will get displaced. In the joints present in that structure, they will get displaced. उनका हो जाता है displacement. When they started moving, or you can say when they started getting displaced, the displacement can be either in the form of translation, or in the form of rotation. ट्रांसलेशन और रोटेशन. जब ये सारे डिस्प्लेसमेंट जो भी जॉइंट्स में हो रहे हैं, these displacements can be considered independently of all other displacements. When you will consider these displacements independent, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट दूसरे डिस्प्लेसमेंट से अलग है, लेना देना नहीं है. एक जॉइंट पे अलग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दूसरे पे अलग हो रहा है, एक दूसरे का इंटर रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट नहीं है. When these displacements are independent displacements, then the movements or the number of movement possible or the number of displacements possible is known as the degree of freedom. Degree of freedom. कौन कितना फ्री है मूव करने के लिए, that is the degree of freedom. मूव किसको होना है? जॉइंट को मूव करना है. जॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जितने भी होंगे, अगर वो सारे डिस्प्लेसमेंट independent है, they are not related to each other, then that is known as the degree of freedom of the movement, which is in turn is known as the degree of kinematic indeterminacy. That will give you the kinematic indeterminacy. That will give you the kinematic indeterminacy. ये हो गई बात kinematic indeterminacy की. For example, let's take an example here. एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा. Let's say that you have a propped cantilever. सबसे बड़ा एग्जाम्पल propped cantilever. स्टैटिक भी चीज समझा था. You have a propped cantilever here, which is having a fixed support here. This is a fixed support, and this is the roller support. This is the fixed support, and this is a roller support. This is support A, and this is support B. Now, for this propped cantilever, if you will see that now this is the fixed portion. ये यहाँ पे fixed end है. ये फिक्स्ड एंड है. फिक्स्ड एंड पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता. इट मींस दैट द डिस्प्लेसमेंट एट दिस एंड ए इज इक्वल टू 0. यहां कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे आप जो भी मूवमेंट कराने की कोशिश करोगे, द सपोर्ट विल प्रिवेंट दैट मूवमेंट. इट मींस दैट देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट हियर ऑन सपोर्ट ए, व्हिच इज द फिक्स्ड सपोर्ट. नाउ यू विल कंसीडर दिस सपोर्ट बी. इस सपोर्ट बी पे देयर कैन बी वन टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वन टाइप ऑफ मूवमेंट कैन बी प्रेजेंट. कैसे? अब ये इधर तो जा नहीं सकता, क्योंकि इधर इसको रोकने के लिए ये खड़ा हुआ है. नीचे भी जा नहीं सकता, नीचे रिएक्शन डेवलप होगा. इधर क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये इससे होल्डेड है, ये इधर वापस खींच लेगा. इट मींस दैट देयर कैन बी ओनली वन टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट, दैट कैन बी द रोटेशन एट द एंड बी. इट मींस दैट एट द एंड बी देयर कैन बी वन पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट. It means that displacement can be deflection or it can be rotation. Both of these comes under displacement. It means that in this particular beam, there is one possible displacement. It means this beam is 1 degree indeterminate, and the kinetic indeterminacy is 1 degree. Kinematic indeterminacy is 1 degree, or the degree of freedom is 1 degree. If you consider a simply supported beam, let's consider a simply supported beam. एक simply supported beam की बात कर लो. This is a simply supported beam. इस simply supported beam में आपके पास एक support क्या होता है? This is a hinge support, and this is a roller support. This is a simply supported beam. Now you have to calculate the kinetic indeterminacy for this. कॉन्सेप्ट से, फॉर्मूला नहीं लगा रहे अभी, कॉन्सेप्ट. क्या कितने पे मूवमेंट हो सकता है? ए की बात करो और बी की बात करो. ए पे आपको पता है ये एक रिएक्शन आता है, एक ये रिएक्शन आता है. इसका मतलब ये दोनों मूवमेंट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार रिएक्शन डेवलप होता है. इट मींस ऑन ए देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ मूवमेंट पॉसिबल, दैट इज थीटा ए. दिस इज पॉसिबल. बी की बात करते हो, बी पे दिस कैन नॉट बी द मूवमेंट. This can also not be the movement because the reaction which is present here and the total beam is holding from here. Total beam यहाँ पे फिक्स है, रुका हुआ है, यहाँ हिंज है, वो उसको आगे जाने नहीं देगा. इट मींस दिस मूवमेंट इज आल्सो नॉट पॉसिबल. इट मींस दैट ऑन बी
there can be only one movement possible, that is theta A. It means that if you will consider the simply supported beam, then this simply supported beam can have only two different movement. It means that the independent movement will be 2, so the degree of freedom will be 2 degree. That means that the kinematic indeterminacy for this particular simply supported beam will be 2. इसका मतलब ये हो गया, अगर आप एक फिक्स बीम की बात कर लेते हो, चलो फिक्स की भी कर लेते हैं फिर, अगर आप एक फिक्स बीम की बात कर लेते हो, then the fixed beam is like this is a fixed beam. अब आप फिक्स बीम को दोनों तरीके से फिक्स कर देते हैं, यहां से भी फिक्स कर दिया, यहां से भी फिक्स कर दिया. अब इसको हिला के दिखाओ, नहीं हिला सकते. इट मींस दैट देयर विल बी नो मूवमेंट हियर. ये ए ले लो, ए बी ले लो. ए पे कितना डिस्प्लेसमेंट है? 0. बी पे कितना डिस्प्लेसमेंट है? 0. इट मींस दैट दिस पर्टिकुलर बीम इज काइनेमेटिकली, दिस बीम इज काइनेमेटिकली व्हाट? डिटर्मिनेट. दिस इज काइनेमेटिक डिटर्मिनेट, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता. दिस इज इंडिटर्मिनेट of degree 2, this is indeterminate of degree 1. तो कॉन्सेप्ट आई गेस समझ में आ गया होगा. बेसिकली you have to calculate the number of possible movements, and those number of possible movements or displacement, if they are individual, if they are independent, then they all comes under the degree of freedom, which is ultimately giving you the degree of kinematic indeterminacy. Now let's come to the formula. अगर आपको फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करना है, let's see that also. सबसे पहले बात करते हैं 2D ट्रस की. ट्रस का मतलब जानते हो, ट्रस इज व्हाट? ट्रस इज अ पिन जॉइंटेड एलिमेंट. ट्रस इज अ पिन जॉइंटेड फ्रेम, यू कैन से दैट. पिन जॉइंटेड केस अगर आप बात करते हो, पिन जॉइंटेड का मतलब हिंज जॉइंट है. 2D ट्रस की बात करते हो, नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना होगा? नंबर ऑफ जॉइंट, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम. नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना हुआ? J. पिन जॉइंटेड मतलब हिंज जॉइंटेड. हिंज जॉइंटेड मतलब हर पॉइंट पे कितना पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? देयर कैन बी, जो मूवमेंट हो सकता है हर पॉइंट पे, कितना मूवमेंट हो सकता है? पिन जॉइंटेड ट्रस में आप जानते हो एक ही फोर्स आता है, दैट इज एक्सियल फोर्स. सिर्फ एक ही फोर्स प्रेजेंट होता है, एक्सियल फोर्स. ना तो बेंडिंग मूवमेंट होता है ना शियर फोर्स होता है. इट मींस दैट फॉर अ 2D केस द नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हिच आर पॉसिबल एट ईच एंड एवरी जॉइंट, दैट कैन बी ओनली 2 डिस्प्लेसमेंट्स. हर जॉइंट पे 2 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होंगे. समझ में आ रहा होगा? पिन जॉइंटेड की बाट कर रहा हूं. इसका मतलब अगर आप डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी निकालते हो तो नंबर ऑफ जॉइंट, टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट कितना हो गया? 2J. एक्सटर्नल रिएक्शन आपके पास कितनी थी? 3. इट मींस दैट दिस इज 2J minus 3, और यू कैन से दैट राइट इन अनदर वे, दिस इज 2J minus RE. दिस कैन बी द केस. हर पॉइंट पे 2 डिस्प्लेसमेंट, 2 डिस्प्लेसमेंट. डेल्टा x is equal to 0, डेल्टा y equal to 0, because you are considering a case of 2D truss that is only having axial forces. बेंडिंग मूवमेंट और तो है ही नहीं, तो एक्सियल फोर्सेस की वजह से देयर कैन बी only 2 possible displacement in one direction and in another direction. It means that the degree of kinematic indeterminacy will be dk is equal to 2J minus RE. For example, if you are considering a 3D element, 3D truss, अगर आप बात करते हो एक 3D truss की, for a 3D truss if you are considering, then the kinematic indeterminacy for a 3D truss will be, 3D में हर joint पे कितना possible displacement for each and every joint? 3 displacement. This will be 3J माइनस का RE, 3 डिस्प्लेसमेंट एट ईच एंड एवरी जॉइंट. दिस इज 3 डिस्प्लेसमेंट एट एवरी जॉइंट. हर जॉइंट पे देयर आर 3 पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट. इट मींस दैट द काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी इज 3J minus RE. दिस विल बी द काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, 3J minus RE. समझ में आ रहा होगा? क्योंकि हर जॉइंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट है? 3 डिस्प्लेसमेंट. कौन कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? 3. डेल्टा x इक्वल टू 0, एक्सियल फोर्स की बात हो रही है क्योंकि आपका पिन जॉइंटेड फ्लेम है. डेल्टा y इक्वल टू 0 एंड डेल्टा z इज इक्वल टू 0. बेंडिंग मोमेंट तो आ ही नहीं सकता, तो रोटेशन का मतलब नहीं बनता, इसलिए आपने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात की है. 2J minus RE या 3J minus RE. नाउ लेट्स गो टू द रिजिड फ्रेम्स. ये तो पिन की बात हो गई. रिजिड की बात करते हो, इफ यू आर कंसिडरिंग द रिजिड फ्रेम, इफ यू आर कंसिडरिंग द रिजिड फ्रेम, देन इट मींस दैट अगर आप रिजिड की बात करते हो तो रिजिड फ्रेम में हर जॉइंट पे कितने पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है? अगर आप 2D रिजिड फ्रेम की बात करते हो, फॉर अ 2D रिजिड फ्रेम, फॉर ईच एंड एवरी जॉइंट द नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट इज 3. डेल्टा x 0, डेल्टा y 0 और आपका रोटेशन 0. तो इट मींस दैट यू हैव 3 पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट. दो डिस्प्लेसमेंट विल बी, अगर आप यहां पे बात करते हो रिजिड में, दिस इज डेल्टा x 0, डेल्टा y 0 एंड थीटा z इक्वल टू 0. Minus, you know that there are some external reactions also which you have calculated in this particular portion. Minus, you have to subtract RE from here. If you are considering ये सारे joint rigid हैं, all joints are rigid. अगर all joints are rigid, then this will be the freedom. This will be give you the movement. क्यों?
अगर सारे जॉइंट रिजिड है तो हर जॉइंट पे ये फिक्स होगा, समझ लो फिक्स्ड ये रिएक्शन है। इसका मतलब फिक्स्ड के अलावा अगर कुछ बच रहा है मूवमेंट, दैट विल गिव यू द डिटरमिनेसी और इनडिटरमिनेसी, दैट विल गिव यू द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल तो इतना पॉसिबल हो सकता है, उसमें से रिएक्शन हटा दिया, मतलब अगर इसमें कुछ बच रहा है 1 2 3 4, इट मींस कुछ भी बच रहा है अगर, तो दैट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट विल बी द मूवमेंट, क्योंकि सारे मूवमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम ये हो सकते हैं। माइनस इसमें से रिएक्शन करते हैं क्योंकि आपको एक्सटर्नल आपका अलग से बात करते हो। समझ में आ गया? दिस इज काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी, ऑल जॉइंट्स आर रिजिड। बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, ये रिएक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, इंटरनल मूवमेंट है ये सारे, डिस्प्लेसमेंट। फाइन। अगर आप बात करते हो 3D की, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द 3D केस, देन दिस विल बी 6J। अब हर 3D केस में कितना 6 होगा, माइनस RE। अगेन ऑल जॉइंट्स आर रिजिड, वी आर कंसीडरिंग ईच एंड एवरी जॉइंट टू बी रिजिड। यहाँ पे 6J में ये जो J है, J के अंदर क्या होगा, डेल्टा x0 x नहीं मूव करना चाहिए, डेल्टा y0 y मूव नहीं करना चाहिए, डेल्टा z0 z मूव नहीं करना चाहिए, थीटा x0 थीटा y0 थीटा z0, ये 6 की 6 चीजें यहाँ प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। इट मींस दैट दिस इज द फिक्स सपोर्ट, दिस इज द रिजिड सपोर्ट, देन द टोटल मूवमेंट विल बी दिस, माइनस यू हैव सब्ट्रैक्टेड द रिएक्शन व्हिच आर बेसिकली द एक्सटर्नल रिएक्शन। दिस कैन बी व्यू द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। नाउ देयर इज अ नोट, ये तो जनरल केस हो गया। अब आ जाओ नोट पे। नोट इज दैट इफ यू हैव हाइब्रिड जॉइंट इन दिस पर्टिकुलर बीम और स्ट्रक्चर, इफ वी हैव हाइब्रिड जॉइंट्स, हाइब्रिड जॉइंट्स का मतलब होता है देयर विल बी सम रिएक्शंस दैट विल बी रिलीज। हाइब्रिड जॉइंट मतलब इधर यू विल हैव हिंज और यू विल हैव लिंक और यू विल हैव इंटरनल रोलर। स्टैटिक में भी बात की थी, इंटरनल रोलर। इट मींस दैट इफ यू हैव दीज थिंग्स देन there will be a little bit change in the kinematic indeterminacy। अगर आप थोड़े से कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो ये जितने भी हाइब्रिड जॉइंट होते हैं ये मूवमेंट बढ़ा देते हैं, ये मूवमेंट बढ़ा देते हैं। अगर हिंज बढ़ाए तो रोटेशन, अगर कोई भी हाइब्रिड जॉइंट प्रेजेंट होगा तो दैट विल इंक्रीज द मूवमेंट। इट मींस दैट द प्रेजेंस ऑफ हाइब्रिड जॉइंट विल बेसिकली इंक्रीज द डिग्री ऑफ फ्रीडम और डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इट विल इंक्रीज the kinematic indeterminacy. It means that now the kinematic indeterminacy with the hybrid joint will become this dk is equal to 3j minus re plus rr. This is for a case of 2D element. dk is equal to 6j minus re plus rr. This is for the case of 3D element. RR you already know, RR means this is the amount, number of reactions which are released, number of reactions which are released, जो रिएक्शन रिलीज हो गई है that will give you this RR value। ये हो गया आपका number of reactions which are released, जो रिलीज हो गई। फाइन, समझ में आ गया। दिस इज डीके। अब बात करते हैं यहाँ आगे अगेन अ सर्टेन नोटिस देयर। ये तो बात हो गई जब आपके पास रिएक्शंस प्रेजेंट है, जब आपके पास हाइब्रिड जॉइंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट there is another joint, another note here. The note is that if actually जो अब आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे निकाला है, ये आपने इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट की वजह से निकाला है। The above degree of freedom which we have calculated, above degree of freedom or degree of kinetic determinacy which we have calculated is basically due to the elastic displacement of जॉइंट, इनकी वजह से आपने कैलकुलेट किया है, जिसमें आपने सारे मेंबर्स को आप ये मान के चल रहे हो कि वो चल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, सम मेंबर्स आर, इफ सम स्ट्रक्चरल मेंबर्स आर रिजिड, सम मेंबर्स आर रिजिड। रिजिड का मतलब मेंबर्स ही रिजिड है। जॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट तभी पॉसिबल होगा ना जब इलास्टिक होंगे, मेंबर मूव कर सकते होंगे। इट मींस दैट इफ मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, मेंबर ही नहीं खींच सकते, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का तो मतलब ही नहीं बनता। इफ द मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दोज मेंबर्स फ्रॉम दिस काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी एज द डिस्प्लेसमेंट फॉर दोज मेंबर्स, एज द डिस्प्लेसमेंट फॉर these members will not be available because they cannot move, as the displacement of these members is not available. So what you have to do, you have to subtract these many members from the total kinematic indeterminacy. What are the number of members? This is, let's say, m. If out of total members, m is the number of members, those are inextensible or axially rigid. That is, if m is the inextensible members,
inextensible members, that is they cannot move, then in that case the kinematic indeterminacy will become 3j minus re plus rr, ये तो सबका हो गया, माइनस जो मूव नहीं कर सकते m. This is for a case of 2d. Similarly this dk is equal to 6j minus re plus rr minus m. This is a case of 3d. 3d में आप ये केस करोगे, मेरा m is the number of axially rigid member. You can say that inaccessible or axially rigid members. This is axially rigid members. फाइन. क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर. एग्जाम्पल के लिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा. लेट्स कंसीडर क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन समझ लेते हैं. क्वेश्चन 1, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात कर रहा हूं. लेट्स से वी हैव अ फ्रेम लाइक दिस. दिस इज अ फ्रेम व्हिच इज प्रोवाइडेड टू अस. ये आपको फ्रेम दे रखा है. ये मान लो यहां दिया है हिंज, एंड हियर आल्सो इट इज हिंज. दोनों जगह हिंज दिया हुआ है. यहाँ आपको इंटरनल हाइब्रिड जॉइंट हिंज साइड दिया हुआ है. यहाँ आपके पास एक लोड है और यहाँ आपके पास एक लोड है. दिस इज अ केस व्हिच यू हैव टू कैलकुलेट द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फॉर दिस पर्टिकुलर केस. डीके आपको निकालना है. डीके का मतलब आता है, जनरल फॉर्मूला याद कर लो, दैट 3j माइनस re 2d ये दिख रहा है प्लस rr माइनस m. ये हमारा जनरल रिलेशन है. सबसे पहले ज्वाइंट की बात करते हैं. 1 2 3 4. देयर आर टोटल 4 नंबर ऑफ ज्वाइंट, दैट इज 3 total joint and 1 hybrid joint, that is total number of 4 joints are here. Number of members की बात करोगे, अगर आप उससे पहले RE की बात करते हैं, number of reactions, reaction की बात करोगे तो 2 here, it means total number of 4 reactions are there. Release reaction की बात करोगे तो release बस यहीं पे होगा. This is a hybrid joint, that is m dash minus 1, where m dash is the number of members meeting, and the hybrid joint, that is 2 minus 1. This will give you 1. Fine. Next is m. m की बात करते हैं. क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ है कि ऑल द मेंबर्स आर एक्सियली रिजिड. यहां पे इन्होंने आपसे क्वेश्चन में ही बोला है, दे सेइंग दैट इन द क्वेश्चन ओनली कि इग्नोर द एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर. आपसे क्वेश्चन में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इग्नोर द एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर्स. अगर आपको मेंबर्स का एक्सियल डिफॉर्मेशन इग्नोर करना है तो इन दैट केस इट मींस दैट सारे मेंबर जो हैं वो एक्सियली रिजिड होंगे क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे हैं. एंड इफ ऑल द मेंबर्स आर एक्सियली रिजिड देन इन दैट केस दिस m विल बी 1 2 and 3. दिस विल बी 3 हो जाएगा. इट मींस दैट dk विल बिकम 3j 3 into 4 minus re plus rr minus m. This will be equal to 6. This is the degree of kinematic indeterminacy for this particular case. Now let's consider another question. एक और क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. आपको ये फ्रेम दिया हुआ है. दे हैव प्रोवाइडेड अस विद दिस पर्टिकुलर फ्रेम. दिस इज अ फ्रेम विद अस. ये आपको एक फ्रेम दे दिया है और इस फ्रेम में दिस इज पार्ट है, इस तरीके से गिवन है. यहाँ पे देयर इज अ हिंज सपोर्ट, यहाँ पे ऑल्सो देयर इज अ हिंज सपोर्ट. नाउ दे आर आस्किंग अस if the axial and the shear deformation in the different members of the frame are assumed to be negligible. It means that they are saying that axial deformations and shear deformations are negligible. Shear deformations are negligible. Then what will be the degree of kinematic indeterminacy? Kinematic indeterminacy निकालना है. You know that dk is equal to 3j minus re प्लस rr माइनस m की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे अगर आप j की बात करोगे, j विल बी कितना हो जाएगा? दिस इज 1 2 3 4, ये 4 हो गए, 5 and 6. देयर आर 6 नंबर ऑफ जॉइंट्स. re if you will say, then re will be equal to what? re will be equal to 4 होगा. If you will go for rr will be the release reaction which will be 0 here because there is no hybrid joint here. And another part is m, which is axially rigid member. The number of axially rigid members are सारे rigid हैं, 1 2 3 4 5 6. There are 6 axially rigid member. It means that the kinematic indeterminacy in this case will be 3 into 6 minus re plus rr minus m. That will give you a value that is equal to 8. अभी क्वेश्चन में अगर आपसे मूवमेंट की बात करते हैं कि मूवमेंट कितने पॉसिबल होंगे, तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी हो गई. मूवमेंट की बात करते हैं तो इन दिस पर्टिकुलर केस दे आर सेइंग दैट
if the axial and shear deformations are negligible. Shear deformations are also negligible. यहाँ पे अगर आप shear की बात करते हो तो there can be two possibilities. shear करने वाला reaction यही है. One reaction is that, another reaction is this. It means that if the free movement are being asked कि कितना possible movement हो सकता है in this particular case. ये तो kinematic indeterminacy पूछा है. Movement की बात करोगे, it means that this will be 8, तो degree of freedom था minus. You have to subtract 2 also. This will be 6. Why you are subtracting 2? Because you have to ignore the axial deformation also for the movement. So in that case, you have to subtract this axial deformation causing forces, which is 2. That will give you 6, the total free movement. That will be the free movement or the degree of freedom. समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ इसको अलग किया हुआ है. But axial deformation अगर सिर्फ ignore करो, that is kinematic indeterminacy. If you are considering there is this particular value, but you have to subtract this from 2. 2 you have to subtract this from this value. Why? Because the shear deformation are also negligible. I think you have understood that particular question. इस तरीके से यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Just to remember the formulas is A.S. Pandit signing out this session. And with this session, I have completed the first chapter of the structure, that is static and kinematic indeterminacy with the stability of the structure. You can practice the previous year questions. Thank you. Bye-bye. Have a nice day.